آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے بزنس مین سے کروانے جا رہے ہیں، ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے صرف 45,000 روپے کی انویسٹمنٹ سے کاروبار شروع کیا، 3 فینسی مرغیاں لے کر آئے اور ان 3 فینسی مرغیوں سے آج ان کے پاس ایک بہت بڑا فینسی مرغیوں کا فارم ہے اور یہ وہ مرغیاں ہیں جو کہ سونے کا انڈا دیتی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہیں جس کے تحت آپ چند ماہ میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں کتنا منافع ہے، کتنا مارجن ہے، اگر کوئی نیا شخص یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو کتنی انویسٹمنٹ سے اب شروع کیا جا سکتا ہے اور کتنا منافع اب کمایا جا سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا بزنس نہیں تھا کہ میں اس کو بزنس کی روح سے دیکھوں، لیکن میں نے ایک شوق سے سٹارٹ کیا تھا 45,000 کے فینسی برڈز کے ٹرائل سے۔ لیکن الحمدللہ جیسے جیسے میں نے پورا سال اس پہ ورکنگ کی اور جب مجھے ایسے انشور ہوا کہ واقعی یہ ایک اچھا بزنس ہے، اس سے آپ منتھلی ایک اچھی ارننگ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں، تو دین میں نے اپنے آپ کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلب بھائیوں کو بھی جو ہے وہ اس میں انڈلج کر کے تو مطلب اس کو انویسٹمنٹ کو بڑھا کے پھر امپورٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے گیا۔ آج یہ مرغیاں سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں، یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی 25,000 کا چک ہے ماشاءاللہ، اس کا یہ وائٹ شامو بریڈ ہے الحمدللہ، جو کہ اس ٹائم پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمانڈیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ بات کریں کہ یورپ سے بھی اگر ڈھونڈنے کی بات کریں گے تو وائٹ شامو ٹاپ کوالٹی میں آپ کو یورپ سے بھی نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم اس کی 25,000 چکس کی پرائز ہے، پر چک کی 2 ویکس کا جو چک ہوتا ہے۔ اب اس کے اگر 15,000 کے اس کے ایگ کی پرائز ہے تو میں اس کو کیوں نہیں مطلب سونے کا انڈا دینے والی مرغی کہوں گا، کیونکہ ایک دیکھیں مجھے ایک خالی اگر میں نے ایک وائٹ کا ٹرائیو ہی رکھا ہو تو یہ مجھے خالی ایک منتھلی کم از کم 2 سے 3 لاکھ روپے کی اچھی ارننگ دیتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، ایک مزدور کی تنخواہ 15-16 ہزار ہوتی ہے اور یہاں ایک مرغی 15,000 کا انڈا دے رہی ہے، 2 انڈے دے تو 30,000۔ یہ بتائیں یہ بلیک کلر میں کون سی نسل ہے؟ بالکل ٹوٹلی یہ بھی بلیک او شاموز ہیں ماشاءاللہ، جن کو کنگ شاموز بھی بولتے ہیں۔ یہ بھی جرمنی کے ون آف دی بیسٹ بریڈرز سے ماشاءاللہ جو ہے وہ میرے بریڈنگ سیٹ اپ پہ برڈز الحمدللہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ان کی اگر آپ بلیک شاموز کی بات کریں، جیسے کہ وائٹ شاموز ہے، وائٹ شاموز کی اگر بریڈر کی بات کریں گے تو 1,50,000 سے لے کے 2 لاکھ تک پر پیس پرائز ہوتی ہے۔ اگر بلیک شاموز کی بات کریں گے تو 1,20,000 تک پر پیس ان کی پرائز ہوتی ہے۔ ان کے چکس کی بات کریں تو 15,000 کا ان کا چوز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایگ کی بات کریں تو 8 سے 10,000 تک ایگ کی پرائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت اچھا فارم بنایا ہوا ہے، بہت صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار کے لیے صفائی، مرغیوں کی صفائی، جو فینسی مرغیاں ہیں ان کی صفائی، ان کے فارم کی، ان کے جو شیڈ بنایا ہوا ہے اپنے یہاں کی جگہ کی صفائی، یہ کتنی ضروری ہوتی ہے مارکیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ایک ہماری نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جتنے خود صاف ستھرائی پسند کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اپنے جو وہ چیزیں جو کہ ہمیں رزق فراہم کر رہی ہیں، ہمارے رزق کا ذریعہ ہیں، تو اگر اتنے آپ نے لاکھوں کے برڈز رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ گندگی میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مین چیز بزنس کرنے کی جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو چیز آپ جتنی صاف ستھرائی سے رکھیں گے وہ اتنا ہی آپ کو اس کا بینیفٹ بھی دے گی۔ تو 45,000 میں آپ نے کیسے شروع کیا؟ کس سائز کی وہ مرغی تھی جو آپ لے کے آئے تھے؟ 3 وہ بھی لے آئے تھے؟ بیسکلی جو 45,000 کا جو ٹرائیو سیٹ تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ فینسی بریڈ تھی۔ یہ اصیل کی آگے ایک کیٹیگری ہے شامو، وہ فینسی بریڈ تھی جن کا چوزا 2,000 سے 2,500 کے درمیان سیل ہوتا ہے۔ وہ ایک فینسی جو ہے نا کیٹیگری ہے وہ، اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب بریڈرز کی اگر میرے پاس ابھی جتنے بھی برڈ بریڈنگ سیٹ اپ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ مطلب منیمم پرائز 1 لاکھ سے لے کے میکسیمم پرائز ادھر 5 لاکھ تک کا بھی مرغا ہے ماشاءاللہ۔ دانش بھائی یہ بتائیں کہ جتنے بھی آپ نے سیل مرغیاں مرغے رکھے ہوئے ہیں ان کا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کی ویسے تو یہ اصیل کہلاتے ہیں، شامو کیٹیگری اصیل کی کہلاتی ہے، لیکن اگر آپ ان کا پاکستان میں مین پرپز دیکھیں تو اس ٹائم یہ فینسی کے طور پہ ہی یوز ہو رہے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر ان کی خوبصورتی سے یہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے جو قد کاٹ ہوتے ہیں اونچے 95 سینٹی میٹر، 100 سینٹی میٹر میں بھی ماشاءاللہ میرے پاس ایک برڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ پاکستان میں مین ان کا فوکس دیکھیں یا مین یوز دیکھیں تو وہ فینسی پرپز ہی ہے کہ لائک شوقین لوگ یوز کرتے ہیں، یا زیادہ تر لوگ اس کی جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں کہ چوزا سیل کر رہے ہیں آگے ایگز وغیرہ ہیچ کر کے، تو مین پرپز ان کا جو ہے وہ شوقین ہی ہے۔ خوراک میں کیا دیتے ہیں اور اس کی کیئر کس طرح کرتے ہیں؟ دن میں کتنی بار آتے ہیں آپ؟ دن
में हमारा तकरीबन कह लें कि क्योंकि इनके साथ हमारा ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है माशाल्लाह, तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी अब केयर करते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा टाइम हमारा इधर ऊपर छत पे ही गुजरता है, ठीक है। तो दाने में हम लोग जो है वो तकरीबन 5000 का जो है वो 5500 का एक बैग होता है 50 kg का, और सही तरह अच्छी तरह उसको जो है वो हम साफ़ करवाते हैं अपने सामने, जिसमें जो है वो शामिल होती हैं डिफरेंट किस्म की दालें शामिल होती हैं, बाजरा, गंदम वगैरह डिफरेंट चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें शामिल होती हैं, जिनसे एक तो इनको नज़ला ज़ुकाम नहीं लगता, दूसरा ये कि वो चीज़ें उसमें शामिल होती हैं कि जिससे इनका मैदा जो है वो स्ट्रक ना हो। इन फैंसी सील मुर्गियों में अक्सर बीमारी के बारे में सुना है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा दीगर मुर्गियाँ जो होती हैं वो भी इसका शिकार हो जाती हैं। उस बीमारी से बचाव के लिए क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे बचाया जाता है? इनके साथ बेसिकली जो है वो डिफरेंट वैक्सीनेशंस के साथ आपको चलना पड़ता है, ठीक है। इसमें NDIB, गम्बोरो वगैरह मेन जो पाकिस्तान में बीमारियां ज़्यादातर पाई जाती हैं तो वो ये हैं। इसमें आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं इनको, मतलब आप ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले इनको जो है वो अच्छी वैक्सीनेशन कर लें, ठीक है। और उसके साथ मेन जो उस्मान भाई मेरा जो मानना है, बीमारी स्टार्ट होती है गंदगी से। जब आपके जो माहौल है वो साफ़ सुथरा है ना, तो मेरा मानना ये है कि वहाँ पे बीमारी पैदा नहीं होती। बीमारी स्टार्ट गंदगी से होती है, ठीक है, और सफाई पे जाके एंड होती है, जब तक आप जानवर को अच्छा माहौल नहीं देते। और हाँ, इस बिज़नेस में अगर आप बात करें कि बीमारियों की, इसमें रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, ठीक है। इसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ मतलब रिस्क भी है कि किसी टाइम बीमारी आ जाए आपके पास। कुछ ऐसी बीमारियां कभी कभार होती हैं कि आपको टाइम नहीं देती, ठीक है, कि आपका सारे का सारा फ्लॉक जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ें तो इसमें शामिल हैं। दानिश भाई ये बताएं कि 2019 से आप फैंसी सील मुर्गियों का काम कर रहे हैं, इस कारोबार में आपने अपने अंदर कितनी तब्दीली देखी है, आपको अब तक कितना फ़ायदा हुआ इस कारोबार से? जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास ख़ुद की जो ज़ाती होती है वो कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। एक 70 बाइक भी मेरी ज़ाती नहीं थी पहले जब मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और आज अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है, इस बिज़नेस से मुझे इतना नाम दिया, इतनी इज़्ज़त दी। उसके साथ साथ जो है वो आज मेरी ख़ुद की जो है वो होंडा सिविक ब्रांड न्यू मैंने रिसेंटली जो है वो 1 मंथ पहले बाई की है, तो वो इसी बिज़नेस से है, ठीक है। इस बिज़नेस में आपको वो पहले बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्रीडिंग में इतना पैसा है इस बिज़नेस में कि आप कह लें कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जिधर आप बिज़नेस में कहते हैं ना कि जिस बिज़नेस में नुकसान नहीं है और फ़ायदा नुकसान दोनों बराबर नहीं है, तो वो ज़ाहिरी बात है हराम होता है फिर, ठीक है। तो इस बिज़नेस में फ़ायदे तो साथ साथ होते ही होते हैं, इसमें आपको अपना साथ साथ सेविंग करनी होती है। वो किस सेंस में करनी है, आप उस जो आपको सेविंग आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, उसको आप किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते जाएँ। ऐसी चीज़ कि जो अल्लाह ना करे, जैसे इसमें बीमारी है, ठीक है, आप ये नहीं सोचें कि आप जो है वो सारे का सारा अपना प्रॉफिट इन्हीं पे जो है वो डिपेंड कर दें, ठीक है। आपको अपने प्रॉफिट को साथ साथ किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को भी सुहाने बाग नहीं दिखाता। इसमें अगर प्रॉफिट है तो उस लेवल का ही नुकसान भी है। आपको पता भी नहीं चलता है कि दिनों में आपको जो है वो 2 से 3 दिन में आपका सारे का सारा फ्लॉक एक्सपायर हो जाता है। आपने तो 45,000 से इस कारोबार का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह बहुत तरक्की कर लिया। आज के दौर में जो आज ये कोई भी वीडियो देख रहा है वो ये कारोबार शुरू करना चाहे, तो आज के दौर में कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार शुरू हो सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है? अगर कोई नौजवान इसको शुरू करना चाहता है तो वो इसको 5,000 10,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। मैं अपनी वीडियोस में यही बताता रहता हूँ कि आप अंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चिक्स से स्टार्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपने ज़हन में रखना है उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि इनके चिक्स जो है वो एक्सपेंसिव होते ज़रूर हैं। लेकिन मेरा ख़ास तौर पे जो नौजवान लड़के होते हैं ना, उनके लिए मतलब एक अलग प्लान होते हैं। अगर मैं दूसरे कस्टमर्स को अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 15,000 में सेल कर रहा हूँ, तो नौजवान या कोई बच्चा ऐसा आता है कि यार स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो उसको मैं वही प्राइस में कम से कम 30 से 40% डिस्काउंट देता हूँ, ताकि यार वो कुछ स्टार्ट करे। अभी से स्टार्ट करेगा तो वो आगे जाके अल्लाह ने चाहा तो वो इस मुल्क का सरमाया बनेगा। जो इन फैंसी सील मुर्गियों के जो एग्स होते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है जिसके बाद ये चिक्स तैयार हो जाते हैं? पहले तो उस्मान भाई हम जो एग्स कलेक्ट करते हैं 4 डेज़ के अंदर गर्मियों में हम इनको जो है वो अच्छी तरह पहले साफ़ करते हैं डेटॉल स्प्रिट के साथ, जो कॉटन के साथ अच्छी तरह सफाई करते हैं इनकी, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का जरासीम ना हो इस पर। उसके बाद हम इनको जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट करती है मशीन। 18 दिन तक जो है वो उसमें अंडा हमारा रहता है, ठीक है। उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेनटेन होता है।
उसके बाद हम 18वें दिन से 19th 20 और 21 जो डे होता है उसमें हम हैचर यूज़ करते हैं, डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो फिर हम एक और मशीन जिसको हम हैचर का नाम देते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसमें चूज़ा हमारा हैच होता है। अब उसके बाद 2 दिन के लिए हम जो है वो हैचर में चूज़े को रखते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो है वो हम उसको एक कारपेट नुमा चीज़ पे रखते हैं, क्योंकि चूज़ा जब अभी नया जो पैदाइश होती है उसको अभी ट्रे वगैरह में पता नहीं होता कि भाई ट्रे में किस तरह जाके दाना खाना है, इसलिए हम उसको कारपेट पे रखते हैं, नीचे दाना फेंकते हैं ताकि वो ज़मीन से जो है वो चुग के जो है वो सारा अपना प्रोसेस चलाए। 5 से 6 दिन तक हम उसको कारपेट पे रखते हैं, चूज़े को, छोटा चूज़ा होता है। उसके बाद जो है वो हम उसको जाली पे शिफ्ट करते हैं, ब्रिक जाली होती है जिसमें उसका पाँव नीचे नहीं जाता। तो उसके बाद 7th डेज़ से आगे जो है वो हमारी खुराक भी जो है वो चेंज होती है और आगे फिर जो है वो उसको हम जाली पे रखते हैं चूज़े को। आपने तो एग्स को तैयार किया और फिर उसके बाद चिक्स को यहाँ लेकर आए, लेकिन जो चिक्स खरीदेंगे आपसे उनको सिर्फ यही ख़रीदना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, उसके अलावा ये बताइएगा कि इस पर कितना खर्चा आता है और ये सारा इंतजाम क्या क्या होना है, नेसेसरी क्या क्या चीज़ें जो इसमें पुट करनी चाहिए? ये बेसिकली ब्रूडर जो बाय अगर आप करने की बात करें, ये 100 चिक्स का ब्रूडर है। ये कह लें कि 8000 में जो है वो 8000 में बनता है, ठीक है। इसको आप घर में भी बना सकते हैं, कोई टेक्निकल मतलब सोच होती है कई बच्चों की, यंगस्टर्स की, वो इसको घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये चाहिए उनको 2 हफ्ते के बच्चे के लिए, इससे आगे उन्होंने अपना जो है वो प्लान करना है। हसन भाई ये बताएं कि आपने इनके कारोबार में ऐसा क्या देख लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की और कितनी इन्वेस्टमेंट किया है, आपका फ़ैसला दुरुस्त था? जी बिल्कुल दुरुस्त था और मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मैंने बेसिकली इसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखता था, फिर जो नई वीडियो डालता था उसकी नोटिफिकेशन आती थी। मैंने बेसिकली प्रॉफिट देखा था और दूसरा मुझको शौक़ भी था बचपन से असील पालने का। पहले चीज़ शौक़ था, पर सेकेंडली जो है इसको मैंने अपना बिज़नेस बनाया क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 7 मिलियन, जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग जिससे की थी 7 मिलियन था। कितना वक्त हो गया और अब तक आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इस कारोबार? इसमें मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 6 महीने हो गए हैं और मैं अपना फिगर कवर अप कर गया हूँ। 6 माह में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी आपने हासिल कर ली है? जी। क्या रिकमेंड करेंगे? बहुत से लोग देख रहे हैं आपको देख के, शायद अब मज़ीद एतबार बढ़ जाएगा इस कारोबार पे, तो उनको लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस कारोबार में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो फ़ायदा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पर थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए मेडिकेशन के बारे में, इसके बारे में, और शौक़ भी होना चाहिए। मेरे काफ़ी मुलाजिम हैं फार्म पे जो मतलब लुक आफ्टर करते हैं, पर मुझे ख़ुद भी इतना शौक़ है, क्रेज़ है कि मैं डेली वहाँ पे 5 से 7 घंटे स्पेंड करता हूँ।